Hello students, welcome back to your science class. So this will be probably the fifth part of chapter 1 of class 7th science, that's nutrition in plants. Okay, so as far as I remember, in the last part we discussed about insectivorous plants. That was the last topic we discussed about. I just wanted to repeat one thing, that post or after I sent these videos on our group, I just noticed that many of you have not watched it carefully. Despite then, I just wanted to tell you that there is no sense of me making such videos. I put in so much effort and so much time and energy into making these videos and to deliver a content which is easy to understand, and it's like it should be useful to you. Like, it's basically you're using it as a substitute for your textbook. Substitute means in place of your textbook. You don't have access to your textbooks right now, either online or offline. So this form is acting as a textbook for you. So I'll also be sending excerpts, or I'll also be sending important paragraphs from the textbook in the group. But watching this video will make concepts clear to you, because obviously, just like a teacher teaches in the class, similarly I'm teaching you here in a virtual class, okay, or in an online class for that matter. Okay, so getting back to the point where we left in the last video was about insectivorous plants. Okay, and I wanted to add one thing to it, that when we talk of insectivorous plants, means those plants which feed on insects to utilize nitrogen from their by digesting them, basically from their dead matter. When the insect falls into the pitcher or the pot, which I said, or you can also imagine like a matka. Okay, so suppose this is the pot, as I said, and the petiole is a leaf-like structure. This is the petiole, this is the stem, and this is the lid. Okay, and it's a thread-like thing attached to this pot or pitcher. Okay, and I just wanted to add one thing. I told you there is something like there is a digestive juice here, okay, which breaks down the insect, okay, and extracts all the nutrients from it, including nitrogen. So what I mean is, उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से हर एक सेल अलग अलग हो जाता है, सो दैट ईच सेल में जो भी नाइट्रोजन जिस फॉर्म में भी प्रेजेंट है वो प्लांट के अंदर आ जाए, प्लांट के टिश्यू में आ जाए, सो दैट द प्लांट कैन यूटिलाइज that nitrogen. Okay, so what I wanted to say was, once the insect falls inside, it's not able to get outside again. It's not able to get outside. Why is it so? Because iski jo walls hain, they are slippery. Why are they slippery? Because there are hairs on it. Okay, like if I just draw like hairs on these walls, side walls. Okay, so there are like long hairs projecting मीन्स लटकना, बेसिकली कहीं से कोई चीज़ लटक रही है, ठीक है, प्रोजेक्टिंग है, बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्टिंग आई एम सेइंग प्रोजेक्टिंग, ठीक है। इस केस में प्रोजेक्टिंग का ये मतलब है कि कोई चीज़ बाहर की तरफ निकली भी है या लटक रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से दैट द हेयर्स आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वॉल. ये वॉल है, दिस इज़ द वॉल ऑफ द पिक्चर ऑफ द पॉट, एंड देर आर लाइक टाइनी हेयर्स. हाँ, इस केस में हम हेयर्स बोलेंगे, हेयर नहीं बोलेंगे. ओके, सो प्लूरल फॉर्म ऑफ हेयर इज हेयर्स इन दिस केस, वेर इज नॉर्मल केस में हेयर, मतलब प्लूरल में भी हेयर को हेयर ही बोलते हैं, राइट. ओके, सो इस केस में जस्ट बिकॉज ये हेयर आर प्रोजेक्टिंग आउटसाइड, सो वो स्लिप हो जाते हैं, इंसेक्ट द स्लिप्स. It slips back into the pot. It's not able to climb up to the mouth of the pitcher again and get out. I hope this is clear. One thing that I noticed that I missed out from this chapter was like there are certain plants, हर एक
प्लांट की लीफ ग्रीन नहीं होती है। आपने कई सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनकी लीफ आपने देखी होगी पर्पल होती है या फिर कुछ अलग कलर होता है। मोस्टली एक प्लांट होता है, ठीक है, जिसको मैं आपको नाम बता देती हूँ, ट्रेडिस्कैंशिया बोलते हैं इसको। ओके, बट इट्स आपको सिर्फ ये आपको याद नहीं करना है नाम, इट्स जस्ट फॉर योर मतलब एक एग्जाम्पल है, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो इसकी जो लीव्स होती हैं दे आर पर्पल इन कलर, ओके। तो ऐसा प्लांट जो होते हैं जिनकी लीव्स देयर इवन रेड कलर लीव्स ऑल्सो, जिनकी जो कलर होता है वो रेड होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स होते हैं, रेड हो सकता है, येलो हो सकती है लीव्स का कलर, ठीक है, लाइक रेड, देन येलो, देन पर्पल, ठीक है, और इवन ऑरेंज, ठीक है। तो ये कलर ऑरेंज येलो तो बहुत कॉमन होते हैं। इवन जब कोई प्लांट ड्राई हो जाता है या फिर उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तब भी उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन से येलो होने लगती हैं, ठीक है। तो येलो और ऑरेंज तो बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ प्लांट्स की सारी लीव्स अगर उसको सारा न्यूट्रिशन मिल भी रहा है, उसके कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी उसकी जब से उसके इनहेरेंटली अंदर से ही उसका पर्पल कलर है या फिर रेड कलर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि उसमें वो ग्रीन पिगमेंट या फिर क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है। आपको मैंने बताया था ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ओके, विच इज़ प्रेजेंट इन विच पार्ट, क्लोरोप्लास्ट। आपको मैंने बताया था सेल होता है, एक लैंड है, उसके अंदर बहुत सारे घर हैं, ठीक है। उसमें से एक घर है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होता है, इट्स इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ओके, सो हम ये बोलते थे कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लांट्स का कलर ग्रीन नहीं है, जो लीव्स का कलर ग्रीन नहीं है, उनमें क्लोरोफिल नहीं। आप ये सोचो, अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स कहाँ से बनाएंगे? वो भी तो दे ऑल्सो सर्वाइव, ठीक है, दे लिव, और वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव, ठीक है। तो सिंस वी नो कि दे ग्रो दैट वे, it means that they very well synthesize और prepare carbohydrates for themselves, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स बनाने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही, यानी उसकी प्रेजेंस में ही कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, इट कैन नॉट अकर विदाउट क्लोरोफिल, ओके। सो प्लीज़ ये मत सोचना कि उन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ओके, उनके अंदर भी होता है, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि फिर उनकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों नहीं होती है? क्या उसमें क्लोरोफिल का कलर कुछ डिफरेंट होता है? क्या क्लोरोफिल उसमें, आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि क्लोरोफिल आप बोलते हो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, तो फिर अभी जो प्लांट्स ऐसे होते हैं रेड पर्पल, तो उनमें क्लोरोफिल अगर होता है तो क्या उसका कलर ग्रीन नहीं होता? वो कौन से कलर का होता है? सो द आंसर इज़ कि उसमें भी ग्रीन कलर का ही क्लोरोफिल होता है, लेकिन लेकिन क्या होता है कि ऐसे जो आपको मैंने बताया कि सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे हाउसेस होते हैं, बहुत सारे और पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जिनको हम ना वैसे ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लो सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि लीफ एक प्लांट का ऑर्गन है, जैसे आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया, यानी एक पार्ट है। उसी तरह हर एक प्लांट के पार्ट में, जैसे हर एक प्लांट में ऑर्गन होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर टिश्यू का सेल होता है ना, तो उसी तरह सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेल के भी बहुत सारे पार्ट्स कह लो या फिर कंपार्टमेंट्स कह लो, ठीक है। एक जो सेल होता है, लिविंग सेल, ठीक है, सेल है, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप के बेसिकली क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं पार्ट्स को हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, एल्स, ऑर्गेनल्स। कोई भी चीज़ में अगर एल्स लग जाता है मतलब कोई बड़ी चीज़ का छोटा फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ वेगन और वेगनेट, ठीक है,
इंग्लिश वर्ड है, मतलब ये कि जैसे वैगन एक तरह की गाड़ी होती है, उसी के छोटे फॉर्म को वैगनेट बोलते हैं। आपने वैगनार सुना है, वैगनार गाड़ी होती है, वैगन से इसका नाम वैगनार पड़ा हुआ है। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज कि कोई भी वैगननेट या वैगन एल्स लग जाएगा, ठीक है, तो एट लग जाएगा ETTE और ELLE, ठीक है, मतलब कोई भी बड़े फॉर्म का छोटा, मतलब उसका एक मिनिएचर फॉर्म, उसका शॉर्ट, उसका छोटा फॉर्म, ठीक है, बड़े चीज़ को छोटा फॉर्म बेसिकली। एक ही चीज़ है, सपोज एक पेंसिल है, एक लंबी पेंसिल है, ठीक है, और एक छोटी पेंसिल है, पर है तो दोनों पेंसिल्स ही, राइट। पर उसी तरह क्या है कि एक बड़ी गाड़ी है वैगन और एक छोटी गाड़ी है वैगनेट, ठीक है। उसी तरह ऑर्गन एक बड़ा पार्ट है जिसको मैं आपको बताया था माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो बेसिकली ये है कि माइक्रोस्कोप वो उन चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज, राइट। तो लेकिन जो अब आप उसी तरह देखो कि जो प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीव्स हो गई, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है, सीड्स भी, ये सब जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, यानी ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, हम इनको ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, ये बड़े होते हैं साइज़ में, है ना। ऑर्गेनल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि एक प्लांट के अंदर, एक सेल के अंदर, कोई भी सेल हो, चाहे वो लीफ का सेल हो, चाहे वो फ्रूट का सेल हो, चाहे वो सीड का सेल हो, कोई भी सेल हो, उनके अंदर जो ऑर्गन या एक सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं एक एक सेल के, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते, वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ये समझ लो कि ऑर्गन का ऑर्गेनल्स कह दिया हमने इनको, ठीक है, यानी छोटा फॉर्म उसका बेसिकली। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज कि उसी तरह आपको बताई थी कि जो एक सेल में अलग अलग कंपार्टमेंट्स या ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें से एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है विच इज़ द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है विच इज़ द ग्रीन पिगमेंट। अब जो ऐसे प्लांट्स रेड या पर्पल जिनकी लीव्स होती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, वो भी ग्रीन कलर का ही होता है। बट क्या होता है कि उसमें कुछ और ऐसे आप समझ लो कि उनमें कुछ और बेसिकली होते हैं कुछ और, जैसे मैं यहाँ पे ये डॉट्स बना दी पर्पल कलर की, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे रेड कलर की भी डॉट्स बना दी, ठीक है। तो क्या है, और ये है क्लोरोप्लास्ट, उसको मैं ग्रीन कलर बना देती हूँ, ठीक है। अब आप ये समझो, ये सपोज एक लीफ का एक सेल है, ठीक है, एक कौन सी लीफ का, सपोज टेरेस्कैंचिया, जब एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जिसका जो पूरे प्लांट का कलर पर्पल है, ठीक है, उसकी लीव्स का कलर पर्पल है, समझ लो ये उस लीफ का एक सेल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, यानी अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं बेसिकली। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो ग्रीन डॉट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं, और जो पर्पल और रेड डॉट्स हैं वो भी एक तरह का ऑर्गेनल ही है, ठीक है। ओके, जिनको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, जिनको हम ओके, सो ओके, जिनको हम बोलते हैं इन येलो और रेड को क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोमो मतलब होता है कलर, बेसिकली क्रोम मतलब कलर होता है, ठीक है, कलर अदर देन ग्रीन, एनी कलर अदर देन ग्रीन, ठीक है, उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। प्लास्ट वर्ड इज कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट में भी और क्रोमोप्लास्ट में भी, ठीक है। ये एक तरह का ऑर्गेनल है जिनके अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल की तरह ही पिगमेंट्स होते हैं, अभी आपको मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, वैसे एंथोसियानिन हो गया, ठीक है, आप सुन लो, एंथोसियानिन हो गया, बीटा कैरोटीन, वो ऐसे कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपको उनके नाम अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना भी समझ लो कि अदर देन क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं उन लीव्स में जिनका कलर होता है लाइक पर्पल या रेड, विच इज़ लाइक नॉट ग्रीन, ठीक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट तो होता ही होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन एवरी लीफ। क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं साथ में, जिनके अंदर रेड और पर्पल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं
ये इतने ज़्यादा इनकी जो कह सकते हैं इंटेंसिटी कह लो, या फिर इनकी जो बेसिकली इनका जो कलर है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना इंटेंस है, ठीक है, कि वो ग्रीन कलर को दिखने नहीं देता, बेसिकली उसको मास्क कर देता है, ठीक है, वो उसको मास्क कर देता है, जो ग्रीन कलर है उसको मास्क कर दे, पूरा जो ग्रीन कलर है उसको ये मास्क कर देता है। तो आपको जो पूरी लीफ है वो आपको वो पर्पल कलर की दिखेगी, पर्पलिश रेड, या बेसिकली जितना ज़्यादा जो कलर का पिगमेंट होगा वो कलर आपको दिखेगा उसमें, ठीक है। तो मतलब ये इसका इंटेंस होता है इतना ज़्यादा कलर, चाहे वो मैरून हो, चाहे वो पर्पल, चाहे रेड, कोई भी कलर हो, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस होता है कि जो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर होता है वो उसको मास्क कर देता है, उसको दिखने नहीं देता है। ओके, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उनमें भी है, क्योंकि उसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ओके, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, ओके।